In the last video, we had started with our chapter 1, which is the selfish giant. We had read this page. We had read this page as well. We had learned a few new words. A few words were given to you to be written in your notebook. I hope you all have done that already. Now in today's class, we will start reading from page number 3. I want you all to read along with me. How happy we were there, they said to each other. Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. The only people who were pleased were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden, they cried, so we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he rode all day about the garden, and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, he said. We must ask the hail on a visit. So the hail came. Every day for 3 hours he rattled on the roofs of the castle, till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey, and his breath was like ice. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. But the spring never came, nor the summer. The autumn gave golden fruits to every garden, but to the giant's garden she gave none. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. I believe spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. These are the words that you have to write in your notebook. Cloak, a long loose garment. Linnet, a small brown bird that makes a pleasant sound. ये वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखने हैं. ऐसे ही जो लास्ट पेज पे ये जो वर्ड है, this word also has to be written in your notebook. Even these two words ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. Now we'll move on. This is page number 4. What did he see? He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms, and were waving their arms gently above the children's heads. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter.
It was farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it crying bitterly. The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. "Climb up, little boy," said the tree, and it bent its branches down as low as it could. But the boy was too tiny. The giant's heart melted as he looked out. "How selfish I have been," he said. "Now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever." He was really very sorry for what he had done. So he crept downstairs and opened the front door quite softly, and went out into the garden. The giant stole up behind the little boy and took him gently in his hand, and put him up on the tree. And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it. And the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck, and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running towards him. "It is your garden now, little children," said the giant. Now we are moving on to page number 5. "And he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him good-bye. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. The giant was very kind to all the children. Years went by, and the giant grew very old and feeble. He could not play about any more. So he sat in a huge armchair and watched the children at their games, and admired his garden. "I have many beautiful flowers," he said, "but the children are the most beautiful flowers of all." This story has been adapted from The Selfish Giant by Oscar Wilde. We will read about this author now. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. He lived from 1854 till 1900. Popularly known as Oscar Wilde, was an Irish author, playwright and poet. Some of his popular works are The Happy Prince and Other Tales, The Picture of Dorian Gray, The Importance of Being Honest, and Lady Windermere's Fan. Now we will read this chapter again, this time to understand its meaning. We are starting with the first warm-up section here. Think of these situations and tell the class what you would do. इन situations के बारे में सोचना है और क्लास को बताना है कि आप क्या करोगे. फर्स्ट सिचुएशन इज, आपको ऐसा इमेजिन करना है, आपको ऐसा मानना है कि आप और आपके दोस्त एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे हो जो कि एक मॉल में थी. यू नीड टू रीच द एग्जिट गेट बाय यूजिंग एन एस्केलेटर. आपको एग्जिट गेट तक पहुंचना है एक एस्केलेटर का यूज करके. एस्केलेटर होता है स्वचालित सीढ़ियां, अपने आप से चलने वाली सीढ़ियां. एंड योर फ्रेंड इज स्केयर्ड टू स्टेप ऑन इट. और आपका दोस्त जो है वो बहुत डर रहा है इसके ऊपर पैर रखने से, उन सीढ़ियों के ऊपर पैर रखने से. विल यू लीव योर फ्रेंड बिहाइंड एंड टेक द एस्केलेटर. क्या आप अपने दोस्त को पीछे छोड़ दोगे और खुद एस्केलेटर पे चढ़ के चले जाओगे, या
पॉइंट नंबर बी, अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ोगे प्यार से और उसकी हेल्प करोगे. आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दीज टू ऑप्शंस कि आप उसकी हेल्प करोगे या छोड़ के चले जाओगे. नाउ सिचुएशन नंबर 2, you know that your mother has given you something very tasty for lunch. At lunch time your friend drops her lunch box. आपको पता है कि आपकी मदर ने एक बहुत ही टेस्टी खाना आपके लिए पैक किया लंच के लिए. लंच टाइम पे आपके फ्रेंड का जो लंच बॉक्स है वो गिर जाता है. नाउ देयर आर टू ऑप्शंस कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे. विल यू कंफर्ट हर एंड शेयर योर फूड. क्या आप उसको कंफर्ट करोगे, उसको कंफर्ट करके उसको पूछोगे कि आप मेरा खाना शेयर करोगे, उसके साथ अपना खाना शेयर करोगे, या आप प्रिटेंड करोगे कि आपने देखा ही नहीं और जल्दी जल्दी अपना खाना सारा खा लोगे. नाउ आंसर दीज टू क्वेश्चंस, और इनके आंसर्स अपने पास रखो अभी. वी विल रीड दिस चैप्टर, इसका मतलब समझेंगे चैप्टर का, एंड देन वी विल रीथिंक अबाउट आवर आंसर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. Let's read the story of a selfish giant who did not like to share. हम एक सेल्फिश जायंट, एक बहुत ही मतलबी जायंट की स्टोरी पढ़ेंगे जिसको कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं था. हर दोपहर को जब वो स्कूल से आते थे तो बच्चे जाते थे खेलने के लिए जायंट के गार्डन में. वो एक बहुत ही बड़ा और प्यारा सा गार्डन था जिसमें बहुत सॉफ्ट ग्रीन ग्रास लगी हुई थी. यहाँ वहाँ सब जगह ग्रास पे बहुत ही सुंदर फ्लावर्स स्टार्स की तरह खड़े हुए थे वहाँ पे. और वहाँ 12 पीच ट्रीज थे जो स्प्रिंग टाइम में डेलिकेट, बहुत मुलायम फूलों में खिल जाते थे, फूल बन जाते थे उन पे, और वो ऐसे लगते थे जैसे कि वो पिंक हैं और मोती की तरह है. एंड इन ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ऑटम में वो रसीले फ्रूट्स देते थे. चिड़िया उन पे बैठती थी पेड़ों पे और मीठा गाना गाती थी. इतना मीठा गाना गाती थी कि चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स. उनको सुनने के लिए बच्चे अपना खेल छोड़ के उनको सुनने लगते थे. हाउ हैप्पी वी आर हेयर. हम यहाँ कितने खुश हैं, वो सब एक दूसरे को बोलते हैं. एक दिन जायंट वापस आ जाता है. वो अपने दोस्त कॉर्निश ओगर को विजिट करने गया हुआ होता है. वहां से वो वापस आ जाता है. वो कॉर्निश ओगर के पास पिछले 7 साल से वहीं पे रह रहा होता है. कॉर्निश ओगर क्या था मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. कॉर्निश एक जगह है कॉर्नवॉल में, इंग्लैंड में, और ओगर का मतलब होता है एक मैन ईटिंग जायंट, एक ऐसा बड़ा विशालकाय इंसान जो छोटे इंसानों को खाता है. कॉर्निश ओगर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कॉर्निश कॉर्नवॉल का रहने वाला मैन ईटिंग जायंट. नाउ वील मूव ऑन टू पेज नंबर 2. जब वो वापस पहुंचा, अराइव्ड का मतलब पहुंचा, उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं. तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो एक बहुत ही रफ आवाज में चिल्लाता है. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बच्चे भाग जाते हैं. मेरा गार्डन मेरा खुद का गार्डन है, जायंट ऐसा बोलता है. और ये बात तो कोई भी समझ सकता है, और मैं किसी को भी इस गार्डन में खेलने के लिए अलाउ नहीं करूंगा, परमिशन नहीं दूंगा, बट सिर्फ खुद ही खेलूंगा यहाँ पे. इसलिए वो बहुत बड़ी एक दीवार बना देता है उसके चारों तरफ, और एक नोटिस बोर्ड भी लगा देता है. और वो नोटिस बोर्ड यहाँ पे उसकी फोटोग्राफ दी हुई है. ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड.
ट्रेसपासर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेसपासर्स का मतलब होता है जो बिना परमिशन के उस वॉल को क्रॉस करेंगे, विल बी प्रोसिक्यूटेड, उनको क्या किया जाएगा? सजा दी जाएगी। प्रोसिक्यूटेड मतलब सजा देना। इसका जो मतलब है वो यहाँ पे भी दिया हुआ है। सी, दोज हु एंटर विदाउट परमिशन। प्रोसिक्यूटेड के ऊपर एक स्टार है, तो ये स्टार का मतलब कि नीचे पेज पे एक स्टार वाली जो लाइन लिखी होगी वो इसका मतलब होगा। देखो एक स्टार लगा हुआ है, लेट्स सी, नीचे ये एक स्टार वाला ये लाइन है। दोज हु एंटर विदाउट परमिशन, जो बिना परमिशन के एंटर करते हैं उनको बोलते हैं ट्रेसपासर्स। प्रोसिक्यूटेड, इस पे 2 स्टार्स लगे हुए हैं। नाउ लुक एट 2 स्टार्स, हियर वी हैव 2 स्टार्स, जिसका मतलब होता है पनिश्ड। कि प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है पनिश्ड, कि जो बिना परमिशन के क्रॉस करेंगे उनको पनिश किया जाएगा। जो बिना परमिशन के इस दीवार को क्रॉस करेंगे उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। वो एक बहुत ही मतलबी जायंट था। बिल्कुल, बेशक, इंडीड का मतलब बेशक। जो बेचारे बच्चे थे, अब उनके पास कोई जगह नहीं बची थी खेलने के लिए। उन्होंने कोशिश की कि गली में खेलें, लेकिन गली में बहुत मिट्टी थी, डस्ट थी, वहां पे बहुत ही हार्ड स्टोन्स भी थे और उनको वो पसंद नहीं था। उनको आदत थी, दे यूज टू वॉन्डर अराउंड द हाई वॉल, वो जो ऊंची दीवार जायंट ने बनाई थी उसके आस पास चक्कर काटते रहते थे। एमलेसली घूमना होता है वॉन्डर, तो वो उसके दीवार के चारों तरफ यूं ही घूमते रहते थे जब उनके लेसन्स खत्म हो जाते थे। लेसन्स खत्म होने का मतलब जब वो पढ़ाई अपनी खत्म कर देते थे या स्कूल में उनके स्कूल खत्म हो जाता था, तो स्कूल से आने के बाद वो उस दीवार के आस पास घूमते रहते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और जो खूबसूरत गार्डन उस दीवार के अंदर था उसके बारे में बातचीत करते रहते थे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। बच्चों, अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग बुक साथ में निकाल के रखिए, और उस जब मैं आपको जो पेज नंबर बताता हूं वो पेज मेरे साथ साथ खोल लिया कीजिए। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहां कितने खुश थे, वो एक दूसरे को बोलते हैं। देन द स्प्रिंग केम, फिर स्प्रिंग का मौसम आ जाता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स, और पूरी कंट्री में, पूरी सब जगहों पे फूल खिल जाते हैं छोटे छोटे, और छोटी छोटी बर्ड्स भी आ जाती हैं। सिर्फ जायंट, सेल्फिश जायंट के गार्डन में अभी भी सर्दियां पड़ रही होती हैं, स्टिल विंटर। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, जो बर्ड्स हैं वो उसके गार्डन में गाना नहीं गाती, क्योंकि वहां कोई बच्चे नहीं होते, और ट्रीज पे फ्लावर्स खिलना भूल जाते हैं। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक सुंदर सा फ्लावर अपना सिर ग्रास के अंदर से बाहर निकालता है, लेकिन जब वो नोटिस बोर्ड देखता है वो इतना दुखी हो जाता है उन बच्चों के लिए कि वो दोबारा से ग्रास के अंदर सरक जाता है, स्लिप हो जाता है उसके अंदर, और फिर से सो जाता है। सिर्फ द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, सिर्फ जो लोग खुश थे वो कौन थे? स्नो एंड फ्रॉस्ट। स्नो मतलब बर्फ, और फ्रॉस्ट मतलब आइस के क्रिस्टल्स छोटे छोटे। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग लगता है इस गार्डन को भूल गई है। दे क्राइड, वो चिल्लाए। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, अब हम इस गार्डन में पूरा साल रहेंगे। कौन बोल रहा है ये? स्नो एंड द फ्रॉस्ट। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट व्हाइट क्लोक, जितनी भी वहां ग्रास थी, उस ग्रास को बर्फ ढक लेती है अपने सफेद कोट से। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो बर्फ है, जो बर्फ के क्रिस्टल्स हैं,
जैसा कि हमारे फ्रीजर में बर्फ जमती है उसको हम आइस के क्रिस्टल्स बोल सकते हैं। तो वो आइस जो है वो ट्रीज के चारों तरफ जम जाती है, तो ऐसा लगता है कि ट्रीज सिल्वर कलर के हो गए हैं। अभी यहाँ पे इसका क्या मतलब, ऐसा क्यों बोला गया है, स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद अ ग्रेट व्हाइट क्लोक? वो इसलिए ऐसा बोला गया है क्योंकि स्नो ने पूरी ग्रास को ढक लिया है। जब हम लोग कोट पहनते हैं तो हम भी अपने आप को पूरा ढक लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे स्नो को एक कोट की तरह बताया गया है जिसने पूरी की पूरी घास को ढक लिया है। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। फिर उन्होंने नॉर्थ विंड को भी अपने पास बुला लिया रहने के लिए। नॉर्थ विंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो हवाएं होती हैं जो नॉर्थर्न साइड से सदर्न साइड की तरफ चलती हैं, और क्योंकि नॉर्थ में बहुत बर्फ होती है वहां पे, तो वहां से चलने वाली हवाएं ठंडी होती हैं। तो स्नो और फ्रॉस्ट ने नॉर्थ विंड को भी बुला लिया और वो आ गया वहां पे। He was wrapped in furs and he rode all day about the garden. वो फर्स से ढका हुआ था और वो पूरा दिन गार्डन में दहाड़ता रहता है, बहुत तेज आवाजें निकालता है। इसमें ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जब तेज हवाएं चलती हैं तो आवाज आती है ना सर सर की, तो उन्हीं आवाज को कंपेयर किया गया है। उसको बोला गया है कि जो नॉर्थ विंड है वो लाउड नॉइसेस निकाल रही है, रोर कर रही है, दहाड़ रही है पूरे गार्डन में। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और चिमनी पॉट्स, जो चिमनी पॉट्स लगे होते हैं घर के ऊपर जिसमें से एग्जॉस्ट घर का निकलता है बाहर, उसको भी उसने उड़ा दिया। तेज हवा चलती है तो ऊपर कुछ ना कुछ टूट जाता है, तो हो सकता है कि चिमनी पॉट्स भी उस हवा से टूट गए हो। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ये बहुत ही अच्छा आरामदायक स्पॉट है। ही सेड, उसने बोला। हमें हेल को भी बुला लेना चाहिए यहाँ पे। हेल ओलो को बोलते हैं, जो बर्फ के गोल गोल क्रिस्टल्स ऊपर से गिरते हैं उनको हेल बोलते हैं। सो हेल केम, तब हेल भी आ गया। फिर हर दिन 3 से 4 घंटे वो रूफ के ऊपर रैटल करता था। रैटल का मतलब जब किसी चीज के ऊपर बार बार नॉकिंग की आवाज होती है, लाइक दिस, इसको बोलते हैं रैटल। तो वो छत के ऊपर जब ओले गिरेंगे तो आवाज आएगी ना इस तरह की, कभी एक ओला गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे लगातार गिरते जाएंगे। तो 3 से 4 घंटे हर दिन रूफ पे ओले गिरते थे, और उन ओले गिरने की वजह से उस कैसल के ऊपर जो स्लेट्स लगी हुई थी, जो ये आपको दिख रही है ये फोटोग्राफ में, तो ये सब स्लेट से मिलके बनते हैं। तो वो स्लेट्स उन ओलों को गिरने की वजह से टूट गई, बहुत सारी स्लेट्स, मोस्ट ऑफ द स्लेट्स टूट गई। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड। फिर ओलो के बारे में बता रहे हैं, हेल के बारे में, कि वो गार्डन में चारों तरफ भागता है, जितना तेज भाग सकता है। अब आप नो जस्ट इमेजिन कि अगर ओले गिर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि कोई भाग रहा है, तो उसको पर्सोनिफाई किया है इसमें हेल, स्नो, फ्रॉस्ट एंड नॉर्थ विंड। ये इंसान नहीं है, कोई लिविंग बीइंग नहीं है, लेकिन इनको लिविंग बीइंग की तरह दिखाया गया है इसमें। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। अब ओले किस कलर के होते हैं? होते तो वो व्हाइट कलर के, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन वो ग्रेइश लुक देते हैं, ग्रे से दिखते हैं थोड़े से। और उसमें बता रहे हैं कि उसने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उसकी जो सांसें थी वो आइस की तरह, बर्फ की तरह थी, ठंडी सांसें थी उसकी। आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग इतनी लेट क्यों हो गई है इस बार आने में। सेल्फिश जायंट बोलता है अपनी विंडो के पास बैठा हुआ। सी, ये अपनी विंडो के पास बैठा हुआ है। एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और वो अपने ठंडे पड़े हुए सफेद रंग की, जिसके ऊपर बर्फ की चादर बिछी हुई है, उसकी तरफ देखता है और बोलता है, आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। मुझे उम्मीद है कि मौसम अब चेंज होगा। लेकिन स्प्रिंग कभी नहीं आई, ना ही गर्मियां आई। ऑटम ने बाकी गार्डन में, सभी गार्डन में गोल्डन फ्रूट्स दिए, बहुत ही सुंदर फ्रूट्स दिए, जिसमें बहुत ही
रसीले फ्रूट्स दिए, लेकिन जायंट के गार्डन में ऑटम ने एक भी फ्रूट नहीं दिया। वो बहुत मतलबी है, शी सेड। ऑटम ने बोला कि वो बहुत मतलबी है, इसलिए उसने कोई भी फ्रूट नहीं दिया जायंट के गार्डन में। तो इसीलिए वहां हमेशा सर्दियां ही थी, और नॉर्थ विंड और हेल और फ्रॉस्ट और स्नो उसके गार्डन में ट्रीज के चारों तरफ नाचते थे। एक सुबह जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड। एक सुबह जायंट अपने बेड में लेटा हुआ था। जग रहा था लेकिन लेटा हुआ था, जब उसने सुना एक बहुत ही प्यारा म्यूजिक। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट। ये एक छोटी सी लिनेट थी। लिनेट एक स्मॉल ब्राउन बर्ड को बोलते हैं। ये एक छोटी सी ब्राउन बर्ड है, इसको लिनेट बोलते हैं, जो एक बहुत प्यारा सा साउंड निकालती है, जो कानों को सुनने में अच्छा लगता है। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन। लेकिन इतना टाइम हो गया था उसको जायंट को एक बर्ड को सुने हुए, कि उसको लगा कि ये सबसे अच्छा म्यूजिक है दुनिया में। वो बोलता है, मुझे लगता है कि स्प्रिंग आखिरकार आ ही गई मेरे गार्डन में, जायंट बोलता है। और वो कूद के अपने बेड से खड़ा होता है और बाहर देखता है। नाउ सी, रेड कलर में ये वर्ड्स ऊपर लिखे हुए थे, क्लोक। मैंने आपको बताया था, इट इज अ लॉन्ग लूज गारमेंट। एक लंबा और लूज कपड़ा होता है पहनने का, जिसको हम कोट भी बोल सकते हैं। लॉन्ग कोट होता है ना, उसको हम क्लोक बोल सकते हैं। ऐसे ही लिनेट रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। लिनेट का मतलब होता है छोटी ब्राउन बर्ड, जो एक बहुत अच्छी साउंड निकालती है, सुनने में जो अच्छी लगती है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। व्हाट डिड ही सी? वो क्या देखता है? वो एक बहुत सुंदर दृश्य देखता है। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल। हमने पिछला पेज पूरा पढ़ लिया है, राइट, पढ़ लिया है, ठीक है। He saw a most wonderful sight. उसने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। छोटे से एक होल में, जो वॉल में था, बच्चे उसके अंदर से सरकते हुए अंदर आ गए थे। क्रैप्ट का मतलब होता है धीरे धीरे, बिना आवाज किए कहीं से बाहर निकलना या अंदर आ जाना। क्रैप्ट आउट होता तो बाहर निकल रहे होते। क्रैप्ट इन का मतलब बिना आवाज निकाले हुए अंदर आ गए वो। और वो बैठे हुए थे पेड़ों की ब्रांचेस पे। हर पेड़ पे जो वो देख सकता था, वहां एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। और पेड़ बहुत ही खुश थे बच्चों के वापस आ जाने से। बच्चों के वापस आ जाने की वजह से वो इतने खुश थे कि उन्होंने अपने आप को फूलों से कवर कर लिया। हर पेड़ के ऊपर बहुत सारे फूल आ गए। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड्स। और वो अपनी ब्रांचेस को, अपने जिनको हम उनके हैंड्स बोल रहे हैं, आर्म्स बोल रहे हैं, उनको वो बच्चों के सिर पे प्यार से सहला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। बर्ड्स आसपास वहां पे उड़ रही थी और आवाजें निकाल रही थी खुशी में। फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। फ्लावर्स ग्रीन ग्रास में से निकल के बाहर आ गए थे और हंस रहे थे। ये बहुत ही प्यारा दृश्य था। एक कॉर्नर में अभी भी सर्दियां ही थी। ये गार्डन का बहुत ही दूर का कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। वहां पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। वो इतना छोटा था कि वो पेड़ों की ब्रांचेस तक पहुंच नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली। और वो उसके चारों तरफ घूम रहा था, बहुत बुरी तरह रोते हुए। बेचारा पेड़ अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से ढका हुआ था, और नॉर्थ विंड अभी भी वहां चल रही थी और बहुत तेज आवाज कर रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, सेड द ट्री। पेड़ बोलता है, चढ़ जाओ छोटे बच्चे मेरे ऊपर। और वो अपनी ब्रांचेस को
झुका देता है, जितना वो झुका सकता है उतना झुका देता है, लेकिन बच्चा अभी भी बहुत छोटा था, वो अभी भी पेड़ की ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये देख के जायंट का दिल पिघल जाता है जब वो देखता है, और वो बोलता है, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना मतलबी था। अब मुझे पता चला कि स्प्रिंग मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रही थी। मैं उस बेचारे बच्चे को पेड़ के ऊपर बिठा दूंगा और फिर मैं ये जो इतनी ऊंची दीवार बनाई है मैंने वो भी गिरा दूंगा, नॉक डाउन, गिरा देना, और मेरा गार्डन बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। वो बहुत दुखी था, जो उसने किया था उसके लिए बहुत दुखी था। जो उसने पहले किया था, उसने बच्चों को भगा दिया था और दीवार बना दी थी, उसके लिए वो बहुत दुखी था। सो ही क्रेप्ट डाउनस्टेयर्स, इसलिए वो अपने कैसल में से, कैसल को बोलते हैं किला, तो वो अपने किले में से उतर के नीचे आता है बिना आवाज के। क्रैप्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, बिना आवाज के, चुपचाप, चुपके से चलना। और वो जो सामने का दरवाजा है वो बड़े प्यार से खोल देता है, एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में आ जाता है। जायंट उस लिटिल बॉय के पीछे पहुंचता है और उसको प्यार से अपने हाथों में उठा के पेड़ के ऊपर रख देता है, और पेड़ एकदम से ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, एकदम से वो जीवित हो जाता है और फ्लावर्स उस पर खिल जाते हैं, और बर्ड्स भी वहां आ जाती हैं और गाना गाने लगती हैं। और जो छोटा सा बच्चा है वो अपने आर्म्स को फैला के जायंट की गर्दन के चारों तरफ उसको फ्लंग कर देता है। फ्लंग का मतलब मैंने आपको बताया था, उसकी तरफ फेंकना। तो वो उसको हग कर लेता है और उसको किस करता है, एंड किस्ड हिम। एंड द अदर चिल्ड्रन, जब बाकी बच्चे, जब वो देखते हैं कि जायंट अब मॉरली रॉन्ग नहीं रहा है, वो अच्छा हो गया, बुरा नहीं रहा, केम रनिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ भागते हुए आ जाते हैं। अब जायंट बोलता है कि ये तुम्हारा गार्डन है अब से, छोटे बच्चों। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। और वो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाता है और दीवार को तोड़ देता है, नॉक्ड डाउन। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, और जब लोग 12 बजे मार्केट जा रहे होते हैं, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, वो देखते हैं, वो जायंट को बच्चों के साथ खेलता हुआ पाते हैं। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, सबसे सुंदर गार्डन में जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। आज तक का सबसे सुंदर गार्डन था उनके लिए वो। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन वो खेलते हैं, और शाम को दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो जायंट को बाय बोलने आते हैं। हर दोपहर को स्कूल खत्म होने के बाद बच्चे आते हैं और जायंट के साथ खेलते हैं। जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जायंट हर बच्चों के साथ, सब बच्चों के साथ बहुत दयालुता से पेश आता है। साल गुजरते रहते हैं और जायंट अब बूढ़ा हो जाता है और कमजोर हो जाता है। फीबल का मतलब कमजोर। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो और खेल नहीं सकता है, तो वो एक बड़ी सी आर्म चेयर का मतलब होता है हाथ, जैसे अपने एक तो चेयर होती है जिसके साइडों में आर्म रेस्ट नहीं होते, जहाँ पे हम हाथ रख सकते हैं, तो जहाँ पे हम हाथ रख सकते हैं अगर वो भी है तो उस चेयर को हम आर्म चेयर बोल सकते हैं। तो वो एक बड़ी सी आर्म चेयर पे बैठता है और बच्चों को उनके गेम्स खेलते हुए देखता है और अपने गार्डन की प्रशंसा करता है। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सारे सुंदर फ्लावर्स हैं, वो बोलता है। लेकिन जो बच्चे हैं वो सबसे सुंदर फ्लावर्स हैं मेरे पास, जितने भी फ्लावर्स हैं उनमें से सबसे सुंदर फ्लावर्स बच्चे हैं। ये स्टोरी द सेल्फिश जायंट बाय ऑस्कर वाइल्ड से एडेप्ट की गई है। एडेप्ट का मतलब उन्होंने बहुत लंबी सारी स्टोरी लिखी होगी तो उस स्टोरी को छोटा करके
आपके लिए यहाँ पे लिखा गया है। ऑस्कर वाइल्ड के बारे में जानते हैं हम। इनका पूरा नाम तो है ऑस्कर फिंगल ओ फ्लेहराइट विल्स वाइल्ड। अब इतना बड़ा सारा नाम है इनका, इसको छोटे में सिर्फ ऑस्कर वाइल्ड बुलाया जाता है। फर्स्ट ये वाला नाम और सिर्फ ये वाला नाम, बीच का नहीं बोलते हैं बार बार। ऑस्कर वाइल्ड ये आयरलैंड के रहने वाले हैं, तो इनको आयरिश बोला जाता है, आयरिश ऑथर। प्ले राइट, ये प्ले राइट भी लिखते हैं, और पोइट, ये एक पोइट भी है। प्ले राइट का मतलब होता है जो प्ले लिखते हैं, और पोइट का मतलब होता है कवि, जो कविताएं भी लिखते हैं। सम ऑफ हिज पॉपुलर वर्क्स आर, उन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, पोइट्री लिखी है और स्टोरीज लिखी है। तो उनमें से उनके कुछ पॉपुलर जो बहुत फेमस हुए हैं वो कुछ ये हैं। द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स, ये मुझे पढ़ने से कहानी लग रही है। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये भी एक स्टोरी लग रही है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड लेडी विंडरमियर्स फैन। इन सब these are 4 of these, I guess. 1, 2, 3 and 4. If you want, you can search these names on the internet, और आप पता लगा सकते हो कि ये एक स्टोरी है या एक प्ले है या एक पोइट्री है। Now we are done with this chapter. अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हम लोग ये फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं अभी, एंड बाकी की एक्सरसाइजेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ इन दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर ए। अरेंज दीज सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर, द फर्स्ट एंड द लास्ट हैव बीन डन फॉर यू। तो पहला और आखिरी हमारे लिए कर दिया गया है। तो इसमें हम अभी क्या करना है, हमें अभी इसमें इसको अरेंज करना है। लेट्स सी इफ वी कैन अरेंज देम इन द राइट ऑर्डर। पहले हम सब लाइंस पढ़ लेते हैं। ही वॉज एंग्री टू सी द चिल्ड्रन प्लेइंग इन हिज गार्डन। जायंट वो बहुत गुस्सा था बच्चों को अपने गार्डन में खेलता हुआ देख के। ही पुट अप अ साइन एंड बिल्ट अ बिग वॉल अराउंड हिज गार्डन। उसने एक साइन लगा दिया था और एक बहुत बड़ी दीवार बना दी थी अपने गार्डन के चारों तरफ। थिंग्स चेंज्ड आफ्टर दैट, चीजें बदल गई थी उसके बाद। स्प्रिंग डिड नॉट विजिट द जायंट्स गार्डन, स्प्रिंग जायंट के गार्डन में नहीं आई। द जायंट केम बैक आफ्टर विजिटिंग द कॉर्निश ओगर, जायंट कॉर्निश ओगर को विजिट करके वापस आया था। द ओनली पीपल हु लिव्ड इन द गार्डन वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। जो लोग गार्डन में रहते थे सिर्फ, वो कौन थे? स्नो एंड द फ्रॉस्ट। जायंट को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने दीवार तोड़ दी। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द गार्डन अगेन। बच्चे गार्डन में फिर से खुशी खुशी खेलने लगे थे। तो फर्स्ट लाइन तो यही थी कि द जायंट केम बैक आफ्टर विजिटिंग द कॉर्निश ओगर। जायंट कॉर्निश ओगर को विजिट करके वापस आ गया था। ओके, मैंने सबके आपको मतलब बता दिए हैं। लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज। आप कोशिश करो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस एक्सरसाइज के आंसर्स दे दूंगा।